Hello children, welcome to my channel Smita Classes. As you know that we were dealing with the standard science book Future Kids Science of standard 7, the science book of standard 7, and we were doing the 5th chapter acid, bases and salts. Already we have done one part of this chapter. Today we will be doing the second part. The second part starts from basic substances. We will first do a reading of some parts. Basic substances. Take some baking soda and taste it. Does it also taste sour? Since it doesn't taste sour, it has no acids in it. Baking soda appears to have a bitter taste. Bases are substances that taste bitter and feel slippery to touch. Metal oxides and hydroxides, except ammonium hydroxide, which is not a metallic hydroxide, are bases. The nature of such substances is said to be basic. The most commonly used bases are sodium hydroxide NaOH, calcium hydroxide CaOH whole 2 and ammonium hydroxide NH4OH. Some bases are soluble in water. These soluble bases are called alkalis. Sodium hydroxide and potassium hydroxide are examples of alkalis. Other metal oxides and hydroxide which are insoluble in water are bases but not alkalis. Thus all alkalis are bases but all bases are not alkalis. Strong and weak bases. More the number of hydroxide ions a base produces on dissolving in water, the stronger base it is. Alkalis like caustic soda NaOH and caustic potash KOH are strong bases. Magnesium hydroxide and ammonium hydroxide are not so soluble in water, but they naturally produce less hydroxide ions in solution and hence are weak bases. Potassium hydroxide or sodium hydroxide is present in soap, calcium hydroxide in lime water, magnesium hydroxide in milk of magnesia, and ammonium hydroxide in window cleaner. Properties of bases. They are soapy to touch, they taste bitter. Strong bases like sodium hydroxide are corrosive in nature. They react with acids to neutralize them and hence are called antacids. Neutral substances. Those substances which are neither acidic nor basic in nature are called neutral substances. Some of the neutral substances are pure water or distilled water, glucose, cane sugar and common salt. All bases, calcium oxide, magnesium oxide, cuprous oxide, sodium hydroxide and zinc hydroxide and alkalis are soluble bases. ठीक है, अब हम लोगों ने एसिड्स के बारे में पढ़ा था कि एसिड्स जो है वो सावर इन टेस्ट होते हैं. दो तरह के एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड. ऑर्गेनिक एसिड तो नेचुरली पाए जाते हैं नेचुरल सब्सटेंसेस में, और जो मिनरल एसिड्स होते हैं उनको ह्यूमन मेड होता है, वो लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं. फिर हमने पढ़ा था कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड के बारे में भी, कि जो नियर टू प्योरर फॉर्म होते हैं जिसमें बहुत कम अमाउंट ऑफ वाटर रहता है, वो प्योर एसिड्स ऑलमोस्ट जो रहते हैं उन्हें कॉन्सेंट्रेटेड एसिड कहते हैं. और जिनमें एसिड का अमाउंट कम होता है, वाटर का अमाउंट ज़्यादा रहता है, वो डाइल्यूट एसिड कहलाते हैं. हमने स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड के बारे में भी पढ़ा था कि कुछ जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है जिनको कि अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करें तो जो ज़्यादा अमाउंट में H+ आयन को वाटर में छोड़ेंगे वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं. जो कम अमाउंट में H+ आयन को वाटर में छोड़ेंगे वो वीक एसिड होते हैं. ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड में सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड था. वीक एसिड में एसिटिक एसिड था. अब हम लोग बेसिस पे आ जाते हैं. दूसरे तरह का सब्सटेंस क्या है? बेसिस है. आपने बेकिंग सोडा आपके घर में देखा होगा, है ना. आप उसको थोड़ा टच करेंगे, क्या वो टच करके टेस्ट करेंगे तो क्या वो आपको जो है खट्टा लगेगा, सावर लगेगा? नहीं, वो बिटर लगेगा, कड़वा लगेगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें एसिड्स नहीं हैं. ठीक है, उसका बिटर टेस्ट है, उसमें एसिड नहीं है. तो बेसेस वो वस्तुएं होती हैं, वो सब्सटेंसेस होती हैं जिनका कि बिटर टेस्ट होता है, कड़वा टेस्ट होता है, और उनको आप थोड़ा वाटर लगा के टच करेंगे हाथ में तो स्लिपरी आपको हाथ में लगेगा. जितने भी मेटल ऑक्साइड्स हैं, यानी कि जितने भी मेटल्स होते हैं उनके साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट होकर मेटल ऑक्साइड्स बनाता है, जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, CuO क्यूप्रस ऑक्साइड. ठीक है, तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड्स होते हैं, ठीक है, वो सब जो है बेसेस की कैटेगरी में आते हैं. इसी तरह मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड होते हैं, देखिए मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड में अंतर क्या है? मेटल ऑक्साइड में कोई मेटल के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ होगा और मेटल हाइड्रोक्साइड में मेटल के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा. ठीक है, मेटल के साथ जब OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड कहलाएगा. जैसे कि NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ZnOH whole 2
जिंक हाइड्रोक्साइड। देखिए होल 2 कब बोलते हैं कि Zn है और OH ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर 2 लगा हुआ है, यानी कि वो 2 दोनों के लिए है, O के लिए भी है और H के लिए भी है। OH का वहाँ पे 2 यूनिट्स प्रेजेंट है, कहने का मतलब यही है। ठीक है, तो जो है ऐसे केस में जो है जितने भी मेटल के साथ अगर OH ग्रुप जुड़ा रहेगा तो वो हाइड्रोक्साइड कहलाएंगे और ऑक्सीजन जुड़ा रहेगा तो वो ऑक्साइड कहलाएंगे। तो जितने भी मेटल के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड है वो सारे बेसेस होते हैं। ठीक है, पर एक और भी चीज़ बेस होता है जो कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, NH4OH है। एक्चुअली अमोनियम जो है वो एक मेटल नहीं है। ठीक है, वो मेटल नहीं है, फिर भी वो एक बेस के कैटेगरी में आता है क्योंकि वो मेटलिक हाइड्रोक्साइड नहीं है। नाइट्रोजन इज़ अ नॉन मेटल है, पर वो बेस के कैटेगरी में आता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये सारे सब्सटेंसेस का नेचर कैसा है? बेसिक नेचर है, स्लिपरी टू टच एंड बिटर इन टेस्ट। ठीक है, सबसे कॉमन बेस जिसको नॉर्मली लैब्स में यूज़ करते हैं वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम और हाइड्रोक्साइड जुड़ा हुआ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल 2, कैल्शियम और हाइड्रोक्साइड का 2 यूनिट्स जुड़ा हुआ। ठीक है, इसी तरह अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी बेस रहता है जो कि लिक्विड फॉर्म में लैब में रहता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड तो स्मॉल टैबलेट्स के फॉर्म में रहता है लैब में। ठीक है, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है वो लिक्विड फॉर्म में रहता है, NH4OH उसका फॉर्मूला है। ठीक है, अब है कि कुछ कुछ बेसेस जो है वो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, कुछ कुछ बेसेस वाटर में सोल्यूबल नहीं होते हैं। तो जो बेसेस वाटर में सोल्यूबल होकर कलरलेस सोल्यूशन बना देंगे, ठीक है, सोल्यूबल हो जाएंगे, उनको अल्कली कहते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaKOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब अल्कली की कैटेगरी में आएगा क्योंकि ये वाटर में पूरी तरह से सोल्यूबल हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि जितने बेस हैं उसमें से कुछ अल्कली हैं और बेस तो सभी हैं, पर उनमें से जो सोल्यूबल हो रहा है पानी में उसे हम अल्कली भी कह सकते हैं। उसी तरह कुछ ऐसे बेस हैं जो कि सोल्यूबल नहीं हो पा रहे हैं पानी में, उन्हें हम सिर्फ बेस कहेंगे, उन्हें अल्कली नहीं कहेंगे। तो ये जो आपकी बुक में एक वेन डायग्राम बना हुआ है, वेन डायग्राम क्या होता है? एक डायग्राम के थ्रू समझाते हैं कि कौन सा चीज़ क्या है। तो देखिए वो डायग्राम में ऑरेंज कलर का जो दिखा रहा है बड़ा सा बॉल, वो दिखाता है कि ये पूरा बेस है। ठीक है, इसमें जितने सामान है सब बेस है, जितने सब्सटेंसेस है, उस बेस के भीतर एक छोटा कैटेगरी, सब कैटेगरी ब्लू बॉल का है जो कि अल्कली है। यानी कि अल्कली भी एक बेस होता है, पर सारा बेस को आप अल्कली नहीं कह सकते हैं, कुछ कुछ बेसेस ही अल्कली रहते हैं, जैसे NaOH और KOH। ठीक है, अब जो है कि हमारे माउथ में जो सलाइवा आता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमारे मुंह में सलाइवा आता है ना, जो कि खाना को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। ठीक है, वो भी बेसिक इन नेचर होता है उसका, वो भी बेसिक होता है। ठीक है, इसी तरह ब्लड अगर हेल्दी फॉर्म में हो, एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में जो ब्लड रहेगा वो भी हल्का सा बेसिक नेचर का होता है। ठीक है, अब है कि और क्या क्या एग्जांपल्स है, जैसे साबुन है, सोप है, लाइम वाटर, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ग्लास क्लीनर, मतलब ये आपका जो ये आता है ना स्प्रे करके हम लोग ग्लास को क्लीन करते हैं, जैसे कि बीच में एक ऐड आता था ना कोई एक चीज़ का, उससे आप क्लीन करेंगे क्या उससे, तो फिर वो जो है वो सब जो है वो सब में बेसेस रहता है। ठीक है, अच्छा अब है स्ट्रॉन्ग और वीक बेस की बात करेंगे। जब हम बेस को पानी में घुलाएंगे तो जिसमें से ज़्यादा OH माइनस आयन निकलेगा वो स्ट्रॉन्ग बेस है, और जिसमें से कम OH माइनस आयन निकलेगा वो वीक बेस है। मतलब कि जो आसानी से OH माइनस आयन को अपना तोड़ के हटा देगा वो स्ट्रॉन्ग बेस, जो नहीं आसानी से पूरा तोड़ पाएगा वो वीक बेस। देखिए मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, अगर सिर्फ H बोलेंगे तो वो एटम है, H के ऊपर जब चार्ज लग जाएगा, H प्लस एक पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा तो वो हाइड्रोजन आयन कहलाएगा। ठीक है, उसी तरह OH सिर्फ एक जो है OH इज़ अ मॉलिक्यूल हम कह सकते हैं, पर जब OH के ऊपर चार्ज आ जाएगा OH-1 तो वो हाइड्रोक्साइड आयन कहलाएगा। ठीक है, अब जो है तो जिसमें ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयन निकलेगा जब बेस को हम वाटर में मिक्स करेंगे तो वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा, और जिसमें से OH माइनस आयन कम निकलेगा वो वीक बेस होगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में आपका क्या आता है, NaOH
आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और KOH आता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का और एक नाम क्या है, कॉस्टिक पोटाश भी नाम है, ठीक है। और जो बाकी कुछ बेसेस है जैसे कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH जो है, ये सब वीक बेस है क्योंकि इनमें से OH- आयन ज़्यादा नहीं निकलता है जब इन्हें हम लोग पानी में मिलाते हैं, क्योंकि ये पानी में सोल्यूबल हो ही नहीं पाते हैं, ठीक है। ये लेस हाइड्रोक्साइड आयन सोल्यूशन में छोड़ते हैं, इसीलिए ये वीक बेसिस कहलाते हैं। देखिए आपको कॉमन जो यूज़ करते हैं हम लोग सामान, उसमें भी बेस होता है, जैसे साबुन में स्ट्रॉन्ग बेस होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और KOH और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर, देखिए लाइम वाटर मतलब कि यहाँ पे नींबू पानी नहीं है, लाइम वाटर है वो जो लाइमस्टोन होता है, चूना जो होता है, उसको जब पानी में डालेंगे तो रिएक्शन करके जो वो सोल्यूशन बनाएगा उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रहेगा CaOH2। इसी तरह मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया आप देखे होंगे कई बार दवाओं के बॉटल में लिखा रहता है, वो दिया जाता है ताकि एंटी एसिड का काम करता है और डाइजेशन अच्छे से हो, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रहता है। इसी तरह विंडो क्लीनर सब बहुत सारे मार्केट में मिलते हैं ना, कि हम स्प्रे कर दिए और वाइप कर दिए तो साफ़ हो जाएगा, तो जो विंडो क्लीनर होता है या कांच को साफ़ करने के लिए जो क्लीनर होता है वो सब में भी बेस मिला रहता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH मिला रहता है। अब प्रॉपर्टी आप बेसिस की कहेंगे तो क्या होगा, वो सोपी टू टच है ना। आप थोड़ा सा बेकिंग पाउडर लगा के फिर हाथ में पानी डालेंगे तो आपको स्लिपरी लगेगा, सोपी टू टच, झाग जैसा लगेगा, वो बिटर टेस्ट का होता है, कड़वा होता है। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, वो कोरोसिव इन नेचर है, मतलब वो अगर आपके स्किन में हाथ में लग जाएगा तो आपके हाथ का स्किन थोड़ा उठने जैसा लगेगा, ख़राब होने लगेगा स्किन, ड्रेसेस पे गिरेगा तो ड्रेसेस में होल हो जाएंगे, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बहुत ही रिएक्शन करता है वो, ठीक है। तो वो नुकसान पहुंचाता है, करोड करता है, जिन्सों को डैमेज करता है, ठीक है, सामान को डैमेज करता है। अब बेस का और एक क्या प्रॉपर्टी है कि बेस के साथ अगर हम कोई एसिड को रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, बेस के साथ जैसे कि हम HCl + NaOH करेंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को रिएक्ट कराएंगे, तो हमें दोनों एक दूसरे के असर को ना न्यूट्रलाइज कर देता है। बेस एसिड के असर को ख़त्म कर देता है, एसिड बेस के असर को ख़त्म कर देता है, और तब हमें मिलता है जो NaCl जो कि एक सॉल्ट होता है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के असर को ख़त्म कर देता है। जब एसिड में मिलता है तो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, तो इसलिए उन्हें एंटी एसिड्स भी कहते हैं। देखिए हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, सबको पता है, पर जब आप काफ़ी समय तक खाना नहीं खाएंगे और है कि खाना नहीं खाएंगे या ज़्यादा खट्टी वट्टी चीज़ें खाएंगे, तो क्या होता है, पेट में ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलने लगता है। पानी कम पीने से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है, तो हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। उस समय डॉक्टर हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी दवाई दे देते हैं, जिसमें कि थोड़ा बेस का अमाउंट रहता है, जो कि पेट में जाके एंटी एसिड का काम करेगा, जैसे कि इनो है, इनो भी एंटी एसिड का काम करता है। अब न्यूट्रल सब्सटेंसेस, अब कुछ ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनमें ना एसिड का प्रॉपर्टी दिखाई देता है ना बेस का प्रॉपर्टी दिखाई देता है, वो न्यूट्रल सब्सटेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि वाटर, देखिए वाटर अगर प्योर फॉर्म में रहेगा, इम्प्योरिटी उसमें नहीं रहेगा, तब वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होता है। जैसे कि हम लोग जो बैटरी में यूज़ करते हैं डिस्टिल्ड वाटर, वो प्योर फॉर्म में जब रहेगा तो वो एक न्यूट्रल सब्सटेंस होगा। जैसे कि बारिश का पानी, जब बारिश का पानी होना चाहिए न्यूट्रल सब्सटेंस, पर क्या होता है जब वो आता है नीचे तो एटमॉस्फेयर के सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के साथ मिलके उसमें इम्प्योरिटी आ जाता है, तो वो थोड़ा एसिडिक हो जाता है ना। यानी कि जब प्योर वाटर का फॉर्म रहेगा तो वो न्यूट्रल सब्सटेंस होगा, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है वो न्यूट्रल सब्सटेंस है। इसी तरह ग्लूकोज जो हम लोग कभी कभी खाते हैं, केन शुगर, ईख जो हम खाते हैं, और कॉमन सॉल्ट, सिंपल नमक जो हम लोग खाते हैं, ये सब न्यूट्रल सब्सटेंसेस होता है। इसमें ना एसिड का प्रॉपर्टी है और ना ही बेस का प्रॉपर्टी है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अब इंडिकेटर्स।
Acids taste sour and bases taste bitter. Many acids and bases, however, cannot be tasted as they are corrosive. So to test whether a substance is an acid or a base, indicators are used. Indicator is a special substance that changes color in the presence of an acid and a base. Using chemical indicators is a safer way to determine if a chemical substance is acidic or basic. Litmus, turmeric, China rose petals, gudhal, red cabbage, etc. are some of the naturally occurring indicators. Litmus, a natural dye. This is the most commonly used indicator. It is extracted from plants called lichens. It has a mauve purple color in distilled water. When this solution is added to an acidic solution, it turns red, and when added to a basic solution, it turns blue. Litmus is available in the form of stripes of paper or in the form of solution. Commonly, it is available as red and blue litmus paper. Acids turn blue litmus to red. Bases turn red litmus to blue. Neutral substances do not change the color of any indicator. Squeeze out a few drops of lemon juice in a test tube. Add some water and shake it to make a solution. With the help of a dropper, put a drop of lemon juice on a strip of blue litmus paper. What do you observe? It turns red. You will observe that blue litmus paper turns red, but there is no effect on red litmus paper. Thus, lemon juice solution is acidic in nature. Preparation of lime water. Dissolve some lime tuna in water in a bottle. Stir the solution and keep it for some time. Pour a little from the top. This is lime water. If blue litmus paper turns red while the red litmus paper remains unchanged, the solution is said to be acidic. If red litmus paper turns blue while the blue litmus paper remains unchanged, the solution is alkaline. If both the red and blue litmus paper remains unchanged, the solution is neutral. Please note that to test the material whether it is acidic or basic with litmus paper, it is necessary to make a solution of that substance in water. Otherwise, litmus paper will not show any color change. देखिए, एसिड्स का टेस्ट सावर होता है, बेसिस का टेस्ट बिटर होता है ना। पर हम लोग सारे एसिड और बेस को टेस्ट करके नहीं पता कर सकते कि वो एसिडिक है कि बेसिक है, क्योंकि वो कॉरोसिव नेचर के होते हैं। वो डैमेज करते हैं ह्यूमन बॉडी को, कपड़ों को, हर चीज़ को, स्किन को। तो सबको केमिकल्स को तो टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है लेबोरेटरी में, है ना, कि कहीं भी हर चीज़ को टेस्ट करना इट्स नॉट पॉसिबल। इसीलिए उनको टेस्ट करने के लिए, जानने के लिए कि वो एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है, कुछ इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जो इंडिकेटर के जैसा काम करता है। इंडिकेटर स्पेशल सब्सटेंस होता है जो कि अपना कलर चेंज कर देता है। कोई एसिड या बेस के प्रेजेंस में वो अपना कलर को चेंज कर देगा उसको, जब हम एसिड या बेस के कॉन्टैक्ट में लाएंगे तो। ठीक है, केमिकल इंडिकेटर्स को हम लोग यूज़ करते हैं और वो बहुत सेफ भी होता है जानने के लिए कि कोई सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक है, खासकर केमिकल सब्सटेंस। लेकिन नेचुरल सब्सटेंस, फ्रूट्स वगैरह तो खा के हम लोग जान जाते हैं, क्योंकि वो सिट्रस होता है, खट्टा लगता है, तो एसिडिक है कि बेसिक है। पर जो केमिकल सब्सटेंस है, लेबोरेटरी के सब्सटेंस, उसको जानने के लिए केमिकल सब्सटेंस एज इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता है। कुछ नेचुरली ऑकरिंग इंडिकेटर भी हमारे लाइफ में हैं, जैसे कि है लिटमस। हाँ, लिटमस हम लोग आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। टर्मरिक, हल्दी। चाइना रोज पेटल्स, गुड़हल, है ना, जो कि इसको कहते हैं ओढ़ूल का फूल, जो कहते हैं गुड़हल का फूल, उसका जो पेटल्स है उसको चाइना रोज भी एक नाम है, वो भी इंडिकेटर का काम करता है। रेड कैबेज। कैबेज तो हम लोग ज़्यादातर ग्रीन कलर का देखते हैं, पर कहीं कहीं रेड कैबेज भी उगता है, वो भी एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिटमस के बारे में बात करेंगे। देखिए, एक पौधा है लिचेंस, उस पौधे को हम लोग कहते हैं। आपके बुक में इसका फ़ोटो भी दिया हुआ है। ठीक है, तो लिचेंस जो है उसमें से लिटमस को निकाला जाता है, उस पौधे से लिटमस को निकाला जाता है। ठीक है, लिचेन पौधे से। और वो लिटमस जो उसमें से निकालेंगे वो मॉव कलर का होगा, मतलब पर्पल कलर का होगा, जब हम उसको डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे। डिस्टिल्ड वाटर क्या होता है? न्यूट्रल होता है, ना एसिडिक ना बेसिक। तो जब हम उसका लिचेन से लिटमस निकाल के डिस्टिल्ड वाटर में डालेंगे तो मॉव कलर का होगा, पर्पल कलर का होगा। ठीक है, तो एक तरह का सोल्यूशन बन गया, लिटमस का सोल्यूशन बन गया। ठीक है, अब हम एसिडिक सोल्यूशन बनाते हैं। मान लीजिए हम लेमन वाटर लिए, लेमन वाटर को लेके नींबू के रस को पानी में मिलाए,
छोटा टेस्ट ट्यूब में रखें, उसमें हम ये लिटमस सोल्यूशन को डालें। लिटमस पानी में जो मिला हुआ है डिस्टिल्ड वाटर में, उस लिटमस सोल्यूशन को हम डालेंगे तो वो रेड कलर का हो जाएगा। पहले कैसा था, पर्पल था, अभी रेड कलर का हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम अगर कोई बेसिक सोल्यूशन लेते हैं, जैसे कि चूना पानी लेते हैं, लाइम वाटर, ठीक है, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसमें अगर हम ये पर्पल कलर के लिटमस सोल्यूशन को डालेंगे लाइम वाटर के सोल्यूशन में, तो वो कैसा चेंज होगा, वो ब्लू हो जाएगा। तो लेबोरेटरी में तो सोल्यूशन भी रहता है लिटमस का, रेड लिटमस सोल्यूशन, ब्लू लिटमस, एक्चुअली सिंपल लिटमस सोल्यूशन भी रहता है लेबोरेटरी में। साथ ही लेबोरेटरी में जो है पतले पतले पेपर स्ट्रिप्स भी रहते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर हम लोग बोलते हैं। ठीक है, ब्लू कलर के रहते हैं, रेड कलर के रहते हैं, लिटमस पेपर रहते हैं लेबोरेटरी में। वो बहुत इजी होता है उससे टेस्ट करना। देखिए आपके बुक में वो डायग्राम फोटो भी दिया हुआ है लिटमस पेपर स्ट्रिप्स का। ठीक है, तो जब हम लोग ब्लू लिटमस पेपर में एसिड का सोल्यूशन डालेंगे तो वो रेड कलर हो जाएगा। रेड लिटमस पेपर में जब बेस का सोल्यूशन डालेंगे तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि नहीं हम ब्लू लिटमस पेपर में बेस का ही सोल्यूशन डाल रहे हैं, तो ब्लू लिटमस पेपर में बेस का ही सोल्यूशन डालने से वो ब्लू ही रहेगा। इसी तरह रेड लिटमस पेपर में अब जो है एसिड का ही सोल्यूशन डालेंगे तो वो रेड ही रहेगा, वो कुछ कलर नहीं चेंज करेगा। तो जब हम एसिड डालेंगे, खट्टी चीज़ डालेंगे तो ब्लू टू आर रेड हो जाएगा, और जब हम बेस डालेंगे तो रेड टू ब्लू हो जाएगा। और अगर हम कोई न्यूट्रल सब्सटेंस डालेंगे, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर डाला था, तो वो तो कोई कलर चेंज नहीं किया था, है ना, लिटमस सोल्यूशन का पर्पल कलर ही रखा था। इसी तरह लिटमस पेपर सब में भी कुछ कलर चेंज नहीं होगा। ठीक है, आप बोलेंगे कि मैम हम लाइम वाटर कैसे बनाएंगे। लाइम मैंने आपको बताया ना, चूना पानी होता है, तो आप थोड़ा चूना लाएंगे, ठीक है, उसे एक बॉटल में डालेंगे, उसमें आप थोड़ा पानी डाल के उसको पूरा मिक्स करेंगे, सोल्यूशन बन जाएगा, तो वही लाइम वाटर होगा। उसमें आप अगर अभी बेस मतलब कि आप उसमें रेड लिटमस पेपर अगर आप डालेंगे लाइम वाटर में, जो कि एक बेस है, तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी आप इसको टेस्ट करेंगे तो सोल्यूशन को टेस्ट करें। आप जो भी एसिड या बेस है उसको डायरेक्टली एसिड और बेस को नहीं टेस्ट करें, उनका सोल्यूशन बना के टेस्ट करें। ठीक है, एसिड्स में ब्लू रेड हो जाता है, बेस में रेड ब्लू हो जाता है, और न्यूट्रल में कोई कलर चेंज नहीं होता है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर्स मैंने स्टार्ट कर दिया है, आज हम लोग इसको यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग टर्मरिक एज इंडिकेटर से शुरू करेंगे, चाइना रोज़, फिर न्यूट्रलाइजेशन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में चले जाएंगे। मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करिए, और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि आपको नए नए वीडियोस और मिलते रहे, मुझे एनकरेजमेंट मिले और मैं नए वीडियोस और बनाऊँ। चलिए बच्चों, मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।